Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 8 study note number 6, that is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 2. Okay, the standard quantity and standard price of a raw material required for 1 unit of a product A are given as follows. Okay, so इधर हम लोग को standard quantity and standard price दिया हुआ है, which is required for 1 unit of a product A. Okay, this is the data for 1 unit of a product A, यानी कि फिनिश गुड्स जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो 1 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को कितना क्वांटिटी लगता है, दैट इज़ इन केजी, एंड स्टैंडर्ड प्राइस इन रुपीज़ इज़ गिवन, दैट इज़ फॉर मटेरियल एक्स एंड वाई. ओके, this is the per unit, 1 unit wise data is given, standard data. Next, actual production and relevant data are as follows. Okay, this is the actual production and this is the total amount which is paid actually for material X and for Y. This is the actual quantity and this is the actual amount which is paid already. Calculate the variances. Actual production was 500 units. Okay, so here we have to calculate all the variances. This is the material data, so we have to go for material variance and all the variances we have to calculate. Okay, so इधर हम लोग को material cost, price, usage, then yield and mix, 5 variances we have to calculate here, and actual production is 500 units. So let's start. First of all, we have to prepare the table like this. This is the standard data and this is the actual data. Okay, so actual data is ready made given in the question. Okay, we cannot write this standard data as it is. Okay, ये जो standard data हम लोग को दिया है वो हम लोग वैसे ही कॉपी नहीं कर सकते टेबल में, क्योंकि दिस डेटा इज़ गिवन फॉर ओनली 1 यूनिट एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड 500 यूनिट्स. ओके, ये जो डेटा दिया है वो 1 यूनिट का दिया है स्टैंडर्ड डेटा, और हम लोग ने तो एक्चुअल में 500 यूनिट्स प्रिपेयर किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इन एज कम्पेयर टू द 500 यूनिट्स. ओके, वो बाद में करेंगे. तो एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रिलेवेंट डेटा, सो दिस इज़ द एक्चुअल डेटा, सो वी विल कॉपी दिस डेटा एज इट इज़. सो 1100 kgs x, 1100 kgs. ओके, नेक्स्ट 1800 kgs for y, 1800 kgs for y. After that they have given us a amount. Okay, this is the final amount. So 3410 amount column में 3410, and next one 3960, 3960. This is the total amount. So we have to find out the cost per unit, यानी कि per unit का कितना होगा. Okay, we have paid 3410, this much amount for 1100 units. Okay, this is the total amount and these are the quantities. So इतना amount हम लोग ने पे किया इतने quantity के लिए, तो एक unit के लिए कितना, that is 3.10. Okay, simply we have to divide this amount by quantity. amount को quantity से divide करो, amount को quantity से divide करो तो cost per unit मिल जाएगा. Okay, next 3960, this is the amount divided by quantity, that is 1800, it is 2.20. Okay, हम लोग इधर इसका टोटल भी लेके रखेंगे. 1100 प्लस 1800, it is 2900. टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज 2900. 3410 प्लस 3960, 7370. Okay, this is the total of actual amount. Now we have to find out the standard data. Okay, for that we'll prepare one working note. Okay, calculation of standard quantity. Okay, in the question they have told us, see, for 1 unit we require 2 kgs of X material and 4 kgs of Y material. Okay, for 1 unit of product A. इसका मतलब हम लोग को एक यूनिट जो भी फिनिश गुड्स होता है, एक यूनिट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को X जो भी मटेरियल है उसका 2 kg चाहिए. ओके, सी, फॉर 1 यूनिट वी रिक्वायर 2 kgs ऑफ X मटेरियल, बट वी हैव प्रोड्यूस 500 यूनिट्स. ओके, हम लोग को अगर एक यूनिट प्रिपेयर करना है फिनिश गुड्स का तो 2 kg चाहिए मटेरियल X का.
एक यूनिट बनाने के लिए 2 kgs। हम लोग ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 500 यूनिट्स। वी हैव प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, सो विल क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, सो विल गेट द टोटल क्वांटिटी। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, it is 1000. Finally we got 1000 kgs. Okay, so we will write here x, na, it is 1000. So for x we require 1000 kgs. For x we require 1000 kgs. Next for y सेम 1 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए y का हम लोग को चाहिए 4 kgs. ओके, टू प्रोड्यूस 1 unit of a final finished goods, so we require 4 kgs. एक यूनिट फाइनल प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 kgs चाहिए. वी हैव प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1, इट इज़ 2000 kg. ओके, वी गॉट 2000. एक शॉर्टकट होता है हम लोग का, जो भी टेबल है वो सही है कि नहीं वो चेक करने का. सी 1000 and 1000 kgs, इट इज़ मोर और लेस सिमिलर, मतलब ये दोनों थोड़ा नज़दीक ही है, मतलब 1000 and 1100, सो इट इज़ ओके. हियर 1000 एंड इफ़ हियर गिवन 10,000, देन इन दैट केस देर इज़ सम मिस्टेक. ओके, जब भी ये दोनों डेटा मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, मतलब उसका जो भी रेंज है वो सिमिलर होता है, तो इट इज़ ओके. बट अगर इधर 1000 दिया है, इधर 10,000 दिया है, तो हम लोग को समझ के लेना चाहिए इधर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता. ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस इज ऑलरेडी गिवन 3 and 2. ओके, स्टैंडर्ड प्राइस इज 3 and 2. विल सिंपली मल्टीप्लाई, दैट इज 3000 and here 4000. We'll get the total quantity. Here total quantity is 3000. Okay, and here total is 7000. Okay, so we got total amount 7000 and total quantity is 3000, which is standard. Okay, so here price is also in the similar range, 3 and 3.10, 2 and 2.20. ओके, तो जब भी हम लोग ऐसा टेबल प्रिपेयर करेंगे तो प्लीज़ चेक करो कि मोर और लेस नज़दीकी है ना अमाउंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो अभी हम लोग का ये जो टेबल है वो परफेक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर एक्स एंड फॉर वाई. वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली, बिकॉज दो डेटा दिया है तो दोनों के लिए सेपरेट ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस. ओके, सो एक्स का कॉन्सेंट्रेट करो फर्स्ट ऑफ ऑल. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 3 minus actual quantity is 1100 multiplied by actual price is 3.10. okay, multiplication 3000 minus इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3410. सो इधर हम लोग का एडवर्स आएगा. ओके, हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि 3000 इतना अमाउंट यानी कि कॉस्ट आएगा, लेकिन वो ज़्यादा आ गया. इसका मतलब हम लोग का लॉस हो गया. माइनस फिगर आ रहा है, सो इट इज़ एडवर्स. नेक्स्ट फॉर वाई, standard quantity is 2000, standard price is ₹2 minus actual quantity is 1800 multiplied by actual price is 2.20. okay, so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4000 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3960. 4000 minus 3960. so answer is 40 favorable. 40 फेवरेबल, क्योंकि जो फिगर आया वो नॉर्मल पॉजिटिव आया, सो फेवरेबल. ओके, सो फाइनल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों का टोटल एक्स एंड वाई का, एक्स प्लस वाई का जो भी आएगा उसका टोटल हम लोग को चाहिए. सो एक्स का है 410 एडवर्स प्लस वाई का है 40 फेवरेबल. सो फाइनल हम लोग का आंसर देखेंगे कितना आता है. ओके, 410 इट इज़ एडवर्स, सो एडवर्स यानी कि माइनस प्लस 40, सो आंसर इज 370 एडवर्स. 370 एडवर्स इज द आंसर ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 370 एडवर्स. लाइक दैट विल कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस.
So formula is standard price minus actual price multiplied by actual quantity. For X, standard price is 3 minus actual price is 3.10 multiplied by actual quantity is 1100. Okay, so 3 minus 3.10 multiplied by 1100, answer is 110 minus यानी कि adverse. ठीक है, so here we have completed for X. Now we'll go for Y. Standard price is 2 minus actual price is 2.20 multiplied by actual quantity is 1800. Okay, 2 minus 2.20 multiplied by 1800, 360 adverse. We are getting minus, so it is adverse. Okay, so finally we will find out material price variance, which is total of X plus Y. Okay, so X का आंसर आया था 110 एडवर्स प्लस Y का आंसर 360 एडवर्स. So we'll get the total adverse variance. Okay, so 110 माइनस था प्लस 360 भी माइनस था, so total आया 470 adverse. 470 adverse is the material price variance. Okay, we have completed 2 formulas. Now we'll go for third formula, that is the material usage variance. Material usage variance. So formula is standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. So standard quantity is 1000 and actual quantity 1100 multiplied by standard price is 3. Okay, so 1000 minus 1100 multiplied by standard price is 3. So answer, see, 1000 minus 1100 multiplied by standard price is 3, so answer is 300 and answer is in minus, so it is adverse. Next, for Y, standard quantity is 2000, actual quantity is 1800 and standard price is 2000, 1800. Here standard price is 2, so we will calculate 2000 minus 1800 multiplied by 2. Answer is 400, but it is positive यानी कि favorable. Okay, so material usage variance, that is X plus Y. Okay, X का आंसर था 300 adverse प्लस Y का आंसर है 400 favorable. So फाइनल आंसर चेक करेंगे कितना आता है. 300 adverse plus 400 normal यानी कि favorable. So answer is 100 favorable. 100 favorable plus आया ना आंसर, so आंसर favorable आया 100. ओके, हम लोग के पास एक शॉर्टकट होता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस का टोटल अगर लेंगे तो एग्जैक्टली सिमिलर टू द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर है 470 एडवर्स. 470 एडवर्स प्लस करेंगे मटेरियल यूसेज का वेरिएंस, दैट इज़ 100 फेवरेबल. फेवरेबल यानी कि नॉर्मल, सो इज इक्वल टू 370 एडवर्स. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 370 एडवर्स. ओके, सो हम लोग का आंसर सही है. ओके, सिंपली वी विल चेक दैट वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. फॉर दैट we can add material price variance and material usage variance, which will we get exactly similar to the material cost variance. Okay, so वही हुआ, हम लोग का आंसर करेक्ट है. Now only 2 formulas are there. First of all, material sub usage or yield variance. Okay, before calculating this ratio we have to understand its meaning. See, after completing this chapter, here institute has given us a glossary, that is short meaning of all the ratios. You can read once or twice, so you will be able to understand. In that we have to understand material yield variance. Material yield variance is the difference between standard cost of production achieved and total quantity of materials used multiplied by standard weighted average price per unit. ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है
जब भी हम लोग को ज़्यादा डेटा दिया जाता है, मतलब 2-3 ऐसे अगर मटेरियल्स का डेटा दिया तो ही हम लोग मटेरियल यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वेन एवर मटेरियल डेटा इज गिवन फॉर 2 मटेरियल्स 3 मटेरियल्स, इन दैट केस ओनली वी कैन कैलकुलेट द मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ओके, so in case of material yield variance we have to use the total standard quantity and total actual quantity and we will multiply it by weighted average standard price. okay, हम लोग को इधर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस. उसको हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोलते हैं. ओके, सो हियर मटेरियल यील्ड वेरिएंस वी विल फाइंड आउट. ओके, total standard quantity minus total actual quantity multiplied by weighted average standard price. okay, total standard quantity that is 3000, total actual quantity 2900. total standard quantity 3000 minus total actual quantity 2900 multiplied by weighted average standard price. okay, weighted average standard price, for that we have prepared one working note. टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी. वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब होता है जो भी स्टैंडर्ड प्राइस का जो भी अमाउंट हम लोग का आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से. ओके, अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी वी विल गेट वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस. सो अमाउंट इज 7000 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज 3000 kg. So 7000 is the amount divided by 3000 is the total standard quantity. So we got 2.33 rupees 2.33. This is the weighted average standard price. So we will use here 2.33. 3000 minus 2900 multiplied by 2.33. Answer is 233. Favorable. See, इधर हम लोग का पॉजिटिव फिगर आ रहा था, सो इसीलिए आंसर 233 फेवरेबल आया. अभी लास्ट रेशो दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस. रेशो इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस. इसके लिए मीनिंग भी हम लोग को दिया है. सी, material mix variance is that part of the material usage variance which arise from the difference between standard mix and actual mix of different types of material used in the production. It is very simple. ये जो है material mix variance, it is like a material usage variance only, but the slight difference is इधर क्या होता है कि जो mix किया है हम लोग ने materials का, उसका जो प्रपोर्शन है उसके हिसाब से जो रेशो आएगा, मतलब जो क्वांटिटी आएगा उसके बीच का डिफरेंस यानी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस. फॉर एग्जांपल सी, ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें टोटल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 3000 है. ओके, ये 3000 में से हम लोग ने एक्स का यूज़ किया 1000 kgs एंड वाई का यूज़ किया 2000 kgs. बट एक्चुअल में इधर 2900 इतना टोटल था, उसमें से 1100 इधर यूज़ किया और 1800 इधर यूज़ किया. मतलब ये जो टोटल है उसमें से कितना प्रोपोर्शन हमने एक्स का लिया और वाई का लिया, और इधर ये जो टोटल है उसमें से कितना प्रोपोर्शन एक्स का है वाई का है, वो जो मिक्स होता है उसको हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलते हैं. ओके, जब भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. उसके लिए हम लोग को चाहिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. सी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल है दैट इज़ 3000 kgs. ओके, ये 3000 में से मैंने x के लिए 1000 यूज़ किया. ओके, 3000 में से मैंने x के लिए 1000 यूज़ किया, तो ये जो एक्चुअल है दैट इज़ 2900, उसमें से कितना. ओके, टू फाइंड आउट द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वी हैव टू कंपेयर दिस मिक्स. ओके, वी आर यूजिंग 1000 kgs of x फ्रॉम दिस 3000 kgs. ओके, ये जो टोटल है 3000 kg, उसमें से हम लोग x के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं. सी, 3000 में से हम लोग 1000 यूज़ कर रहे हैं x के लिए, वही हम लोग ये 2900 में से कितना करना चाहिए. ओके, 3000 में से 1000 kgs यूज़ किया x का, तो 2900 ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है टोटल, उसमें से कितना यूज़ करना चाहिए था. ओके, वो जो मिक्स होता है उसको हम लोग रिवाइज क्वांटिटी बोलते हैं.
So here cross multiplication 2900 multiplied by 1000 divided by this 3000. Okay, so ऐसे पॉइंट में आएगा तो राउंड अप मत करो, 966.66 kgs. ओके, हम लोग ने स्टैंडर्ड 3000 kg में से 1000 kg यूज़ किया, तो एक्चुअल में हम लोग ने इतना kg यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने ज़्यादा किया, ऐसा इसका मीनिंग होता है. सो रिवाइज क्वांटिटी फॉर x वी गॉट 966.66 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 3. ओके, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 1100 multiplied by standard price is again 3. Standard price is 3. Simply we have to calculate here. So ये ऐसा ही यूज़ करना है. ओके, ये जितना आया है ऐसा ही यूज़ करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3. सो इधर राउंड अप करेंगे तो 2800 एंड इट इज़ 2900. ओके, राउंड अप करेंगे तो 2900 हम लोग आएगा. 2900 इज़ द अमाउंट माइनस 1100 multiplied by this 3300. Okay, so 2900 minus 3300, it is 400 adverse. Okay, वैसे ही हम लोग को अभी y का करना है, तो y में भी वैसे ही हुआ. 3000 kg में से 2000 kg y के लिए यूज़ किया. ओके, वी हैव यूज्ड 2000 kg of material y from total 3000 kgs. Okay, so from this total, that is actual में से कितना करना चाहिए था, that is 2900 में से कितना करना चाहिए था. 3000 में से 2000 यूज़ किया, तो 2900 kg में से कितना करना चाहिए था. ओके, 2900 multiplied by 2000 divided by this 3000, so we got 1933.33 kg. 1933.33 kg. Okay, so we have to use this 1933.33 is the standard quantity multiplied by standard price for y. Standard price for y, it is 2 minus actual quantity is 1800 multiplied by standard price is 2. Okay, we have to calculate. So ये जो हम लोग यूनिट्स लेते हैं तो पूरा वैसे ही लेना है, 1933.33333 ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट इज़ 3867. अभी राउंड अप कर सकते हैं, 3867. ओके, माइनस 1800 multiplied by 2, so it is 3600. Okay, 3867 minus 3600, we got 267, which is favorable. 267 favorable. Okay, अभी finally material mix variance. Okay, x plus y, so x का आया 400 adverse प्लस y का आया 267 फेवरेबल. सो फाइनली देखते हैं कितना आता है. ओके, सो 400 एडवर्स प्लस 267 फेवरेबल यानी कि नॉर्मल, सो 133 एडवर्स. 133 एडवर्स इज द आंसर ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस मटेरियल सब यूसेज और यील्ड वेरिएंस, दोनों का एक ही नेम है. ओके, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ठीक है. ओके, ये जो मटेरियल सब यूसेज और यील्ड वेरिएंस है उसका एक ही आंसर आता है, मतलब एक्स और वाई के लिए डिफरेंट नहीं आता है, क्योंकि इधर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ किया जाता है. ओके, हियर वी विल गेट ओनली वन आंसर बिकॉज वी आर यूजिंग टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, सो विल गेट ओनली वन आंसर. बट इन केस ऑफ ऑल अदर रेशियोज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर एक्स एंड वाई सेपरेटली. सो वी गॉट मटेरियल मिक्स वेरिएंस सेपरेट फॉर एक्स and separate for y. Same we got separate answer for each that ratios, that is cost, price and usage. cost, price, usage, mix, उनके लिए डिफरेंट आंसर आता है x और y का. और जो भी मटेरियल सब यूसेज और यील्ड वेरिएंस है उसके लिए एक ही आंसर आएगा, क्योंकि उधर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ किया जाता है.
So here we have completed illustration number 2. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends and subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Okay, thanks for watching friends.